A very good morning, dear students. First of all, I would like to welcome you all to my channel. Okay, so I'm back after a long time. Okay, so I think most of you have already forgotten me. Okay. Anyway, in today's class, we are going to start data structure. Okay, data structure means already we have learned about data structure. Okay, if you remember array, we have studied in before also. Okay, so data structure means, it's in simple word, data structure means the arrangement of different data, okay, within within a block is known as data structure. Okay, arrangement of data. मान लीजिए हम लोग के पास बहुत सारा डाटा टाइप है, डाटा है से इंटीजर का है, फ्लोटिंग पॉइंट का है, कैरेक्टर का है. ओके, तो बहुत सारा डाटा हम लोग अगर एक साथ हम लोग ग्रुप बनाए या हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग अरेंज करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डाटा स्ट्रक्चर. ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली देयर आर टू टाइप्स. ठीक है, द फर्स्ट वन इज simple data structure and the second one is compound data structure. Okay, compound data structure. So what is this simple data structure? Like here, this simple data structure actually you have learned till now, but we have not started the compound data structure. Okay, so under simple data structure we have array, we have structure, right? So array and structure already we have learned. That means we have already started data structure from before only. Okay, the second type of data structure is compound data structure. Here we'll have linked list, stack, queue. Okay, queue. So this linked list, stack and queue we are going to learn new in this chapter, in this unit, that is under this data structure. Okay, so this will be new for you, stack will be new for you, and queue also will be new for you. But the simple data structure, array and structure, already it is familiar to you all. Okay, so it will be easy for you to understand. Okay, so in today's class we are going to focus on this particular part, that is array, because array also we have not covered all. Okay, so till now we have learned about array is like we did some programming based on the array, that is one dimensional array, and we did some programming for two dimensional array also. Okay, so here we are going to focus more, or you can say in detail, about the array. Okay, so what we are going to learn in this array? Here we are going to learn how to find out the address of a particular array, you can say. Okay, then for two-dimensional array and for one-dimensional array as well. Okay, under this array we are going to learn some searching technique. That means if element को हम लोग को find करना है out of 2D array, out of 3D array. 3D array we are not going to focus in here. Okay, so searching technique. So there are two types of searching technique, this linear search and binary search. Fine. Then we are going to learn some sorting technique. What do you mean by sorting technique? से मान लीजिए एक हम लोग के पास array दिया हुआ है, तो उस array को हम लोग क्या करना पड़ेगा? Arrange करना पड़ेगा, sort करना पड़ेगा, either in ascending order or in descending order. Okay, so that means we are going to learn different types of sorting algorithm. Bubble sort is there. Okay, heap sort is there. So there are many sorting algorithms there. So we are going to focus on this array. Okay, and then structure. In our syllabus, it is not there. And regarding structure, already you have learned in previous classes. So, okay, so if you need any classes for this structure, then I'll prepare accordingly. Okay, but it is not in your syllabus. In your syllabus, under this data structure you have array, you have linked list, you have stack, and you have queue. Okay, so we are going to focus
on array particularly. Once array completed, then we'll focus on linked list, string, and queue. Fine. So under array already we have learned some what you can say searching technique, especially linear searching. Already we have learned, okay, in my previous classes. So linear array is, I'll write it, okay. So linear array is very simple. So we have an array. We have an array. Suppose we have some element here 2, 5, 9, 0, 1, and suppose you are searching for an element 0. So what you'll do? You will search from the beginning in terms of linear search. Okay. So will 0 is suppose here 0 is we are comparing with 2. 0 is equal to 2. No. Okay. Then it will go on with 5. Then it will go on with 9. It will go on with 0. So here it is matching. These are not matching. That means the item we are searching, that one we will be searching from the beginning of the array. That means first element जो होगा वहां से हम लोग एक एक करके चेक करेंगे कि whether वो item यहाँ पे present है, यहाँ पे present है, like that. Okay? अगर 0 यहाँ पे present है ही नहीं, हम लोग का array search करना हो गया है, then item is not found in the array. Okay? So this is the method of linear search. It is very simple. For doing programming also very simple. For algorithm also it will be very simple. Okay. Now we are going to focus on binary search. We are going to focus on binary searching technique. So what is this binary search? So मान लीजिए एक array है. This is very important. Okay, binary search is very important. Here we need to know how we can search an element, okay, and then we need to know the algorithm as well. Programming also we need, okay. So here algorithm is most important. Okay, one more thing. Some of you are still confusion about algorithm. So what is algorithm? Algorithm are the step-by-step procedure to find the solution of a problem. हम लोग प्रोग्रामिंग करने से पहले एक्चुअली वी नीड टू डेवलप द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम मींस सपोज यू आर राइटिंग ए प्रोग्राम टू फाइंड द प्राइम नंबर्स. ओके, तो फर्स्ट व्हाट यू डू, फर्स्ट यू think in your mind that what I have to do, what logic you are going to apply. Okay, so that means that step by step. Okay, once you think, you write down, first I'll do this one. Okay, I'll take the variable, then second we'll start from the 2. Okay, then we'll divide, we'll remainder, so on, so logic and all. Okay, मतलब ये जो step by step हम लोग लिख के जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एल्गोरिथम. मतलब पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, that is algorithm. इसलिए एल्गोरिथम क्या है? Algorithm are the step-by-step procedure to find the solution of a problem. Okay, so that is algorithm. So here we are going to focus on algorithm. Okay, so let's say we have an array. Say here we have 2, 9, 10, 12, 15, 19, 20, 25. One thing you have noticed, I have written the item here as, you can say, in ascending order. Why? Because you see, to use binary searching technique, your array must be in sorted form. Remember, your array must be in sorted form. Whether it can be in ascending order, this is ascending order because smallest to the biggest. It can be descending order also, like biggest number, biggest to smallest also you can do. Any order is fine, but the thing is array must be in sorted form. If the array is not in sorted form, then you cannot apply binary search. Okay, now some of you might be thinking that how we can sort the array if it is not in sorted array. For that, again we have to learn different types of sorting algorithm. Okay, so as you know, an array have index. Okay, starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. From 0 to 7 there are total 8 elements, right? Now how we are going to search an array element? Okay, मान लीजिए हम लोग को सर्च करना है, I'm assuming, okay, सर्च करना है item
20. Okay, 20 को ढूंढना है. If you look in the array, 20 is here. Okay, but you see this is a very small array. In real life, what will happen? We'll have a bigger array. Okay, there will be millions of items. So in that case, how we are going to search the element? Okay, there too we cannot see and we cannot say okay item is here, right? So we cannot say. So in that case, we have to use this searching technique. And binary searching is you can say more convenient compared to the linear search. Okay, so why it is good to use? Okay, see, in binary search, suppose the main idea behind this binary search is we have an array. Okay, ये जो array है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे in the mid point. ठीक है, तो डिवाइड कैसे करेंगे? You can see here the first item is 0 and the second last one is 7. Or you can say this is what? This is lower bound, you can say, and this is you can say upper bound. Okay, lower bound and sorry, this is lower bound and this is upper bound, right? Upper bound. So how we are going to find the midpoint? It is very simple. What we'll do? We'll this lower bound plus upper bound is what? 7 divided by 2. So if you divide, then it will be what? 3.5. So 3.5 point. Where it is? We are talking about. We are adding what? We are adding the index, not the element. Remember that. Okay. So 3.5. So this 3.5 is not here. So what we'll do? We'll write like this. We'll make it as integer. That means we'll take 3. We will take 3. 3 is here. So mid will be here. That means we'll assume that this is the midpoint. Right? We'll assume that this 3 is the midpoint, and in the index 3 we have the element 12. Now what we'll do? We will search. What will search? If this 12 is less than 20 or not. Yes, ये जो आइटम 20 है, ये 20 सॉरी ये आइटम जो 12 है, ये 12 हम लोग जो ढूंढ रहा है उससे लेस देन है. ठीक है, तो लेस देन है, राइट? अगर लेस देन है तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो लोअर बाउंड है, हम लोग लोअर बाउंड एज्यूम करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे. कौन सा पोजीशन में? You can say okay, I'll write in this way. ध्यान दीजिएगा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लोअर बाउंड पहले 0 में था, अब लोअर बाउंड हम लोग 0 से लेकर कहां तक लेके जाएंगे? 4 में आ गया आगे लोअर बाउंड, लेकिन अपर बाउंड चेंज नहीं हुआ है. ठीक है, तो लोअर बाउंड कहां पे आ गया है? 15 में. यहां पे है लोअर बाउंड अभी. ठीक है, तो लोअर बाउंड इंडेक्स कौन सा है? 4. आइटम क्या है? 15, राइट? अब देखो, ये जो एरे था मिड पॉइंट से पहले, ये जो एरे था, अब इसको हम लोगों को ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये जो 12 मिड पॉइंट में जो आइटम था 12 ये वाला, ये लेस देन है 20 से, और हम लोग का एरे क्या है? सॉर्टेड फ्रॉम में है. तो ऑब्वियसली ये यहाँ से इस साइड में नहीं हो सकता है, उस साइड में होगा. तो उस साइड में लेके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? ये जो लोअर बाउंड है इसको वहां पे हम लोग क्या करेंगे? मिड प्लस 1 कर देंगे. मिड पॉइंट कहां पे है? 3 में है, तो मिड प्लस 1 करने से क्या होगा? 4 होगा, राइट? तो हम लोग मिड पॉइंट यहाँ पे लेके आएंगे. ठीक है, दैट मीन्स लोअर बाउंड हम लोग यहाँ पे लेके आ गया. मैं टेक्निक बोल रहा हूँ, हम लोग एल्गोरिथम के बाद फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो लोअर बाउंड यहाँ पे है, अपर बाउंड यहाँ पे है. पहले लोअर बाउंड यहाँ पे था, अब ये कंडीशन फॉल्स हुआ, सॉरी ये ट्रू हुआ, तो हम लोग लोअर बाउंड वहां पे लेके गया. कहां पे लेके गया? मिड प्लस 1. कहां पे है? 4. क्लियर? अब देखिए हम लोग का एरे हम लोग का एरे बन गया है ये वाला. अब ये सब जितना भी आइटम यहाँ पे है, ये हम लोग को सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आइटम प्रेजेंट है ही नहीं. फाइन. तो हम लोग का आइटम बचा है 15, 19, 20, 25. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? जो आइटम क्या है? 20 है. ठीक है, मिड कहां पे है? लोअर बाउंड यहाँ पे है, राइट?
लोअर बाउंड यहाँ पे है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट ढूंढेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे होगा इस बार, 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, इक्वल टू 5.2। तो 5.2 वी कैन टेक, सो विल एज्यूम दिस 5 एज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो अब मिड पहले यहां पे था, नाउ मिड विल बी हियर, राइट 5, दैट मीन्स 19 में है मिड। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ढूंढेंगे इफ 19 इज इक्वल टू 20। ये जो 19 हम लोग मिड पॉइंट में जो आइटम है ये 19 20 के इक्वल है क्या, नहीं है। अगर नहीं है, ये फॉल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इसको हम लोग चेक करेंगे कि इफ जो हम लोग एरे ढूंढ रहा है, ये सपोज 19 है, इफ 19 इज लेस देन 20, यस दिस इज ट्रू। अगेन व्हाट विल डू, अगेन वी will increase the lower bound, okay, how, mid plus 1, that means lower bound अभी पहले यहाँ पे था 4 में था, अब लोअर बाउंड यहाँ पे आ जाएगा 6 में आ गया। ठीक है, लेकिन अपर बाउंड वही है। ठीक है, अब लोअर बाउंड यहाँ पे नहीं रहेगा, लोअर बाउंड कहां पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। ठीक है, जब लोअर बाउंड यहाँ पे आ गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से मिड पॉइंट ढूंढेंगे। मिड पॉइंट क्या होगा, 6 प्लस 7 बाई 2 कितना होगा, 13 बाई 2। अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 6.2, दैट मीन्स 6। सो 6 मीन्स हियर, सो मिड इज हियर। नाउ व्हाट विल डू, अगेन विल सर्च इफ मिड में क्या है, 20 है, इफ 20 इज इक्वल टू 20, यस। अगर मैचिंग हो रहा है तो सर्च करो। ओके, सो दिस इज द टेक्निक। अब मान लीजिए हम लोगों को ढूंढना है, सर्च करना है एरे 2, तो हम लोग क्या करेंगे, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, डोंट वरी, अगर ये सब क्लियर नहीं भी हो रहा है तब भी मैं एल्गोरिथम के हिसाब से दिखाऊंगा सबको। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए हम लोग को ढूंढना है इस बार 2 कैसे करेंगे हम लोग, लोअर बाउंड हम लोग के पास है, अपर बाउंड है। ठीक है, हम लोग क्या करना है, मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2, एंड रिमेंबर वी विल टेक द इंटीजर वैल्यू ओनली। ओके, सो 0 प्लस 7, अगेन आवर मिड पॉइंट विल बी 3.5, सो इट विल बी 3। ओके, हम लोग फिर से क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि 2 इक्वल टू अगर मिड पॉइंट में जो वैल्यू है वो 2 है क्या, तो ऑब्वियसली ये 2 नहीं होगा क्योंकि ये 12 है, तो ये फॉल्स होगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इफ ये जो आइटम है, और इधर से ये जो आइटम है 12 इज लेस देन दिस 2 और वेदर 12 इज ग्रेटर देन 2, तो इन दिस केस जो हम लोग ढूंढ रहे हैं 2 है, 2 यहाँ पे है, और 2 इज लेस देन मिड पॉइंट वैल्यू 12, राइट। इस बार 2 12 से स्मॉलर है, तो स्मॉलर होने से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पे नहीं चेक कर सकता है क्योंकि हम लोग का आइटम यहाँ पे इस साइड में है, मिड पॉइंट कहां पे है, यहाँ पे है। तो अगर ये मिड पॉइंट है और हम लोग जो आइटम ढूंढ रहे हैं वो स्मॉलर देन दिस वैल्यू, तो ये जो पार्ट है इस बार इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इस बार क्या करेंगे, हम लोग लोअर बाउंड को वहां पे फिक्स रखेंगे और अपर बाउंड जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, मिड -1 में लेके आएंगे, दैट मीन्स 2 में लेके आएंगे इसको, मिड -1। ठीक है, अगर आइटम उस साइड में है तो मिड को लेके जाएंगे, सॉरी लोअर बाउंड को लेके जाएंगे, और अगर आइटम इस साइड में है तो अपर बाउंड को लेके आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार ये वाला पार्ट देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, अगेन उसके बाद अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, अब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट ढूंढेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट ढूंढेंगे, अकॉर्डिंगली विल फॉलो द सेम स्टेप। ओके, सो लेट मी राइट द एल्गोरिथम। Okay, so now we are going to learn algorithm. Just a minute. Okay, so algorithm, first of all, algorithm means you already know what is algorithm. Algorithm are the step-by-step procedure to find the solution of a problem. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, to find
द आइटम विद इन एन एरे। हम लोग का प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो एल्गोरिथम हम लोग का पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1, ठीक है। मैं एरे लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे। सपोज हम लोग के पास एरे ये है, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 5, I'm taking only 6 element, right? So here suppose we have 3 9 15 20 25 35, okay, and suppose okay, practically हम लोग बाद में देखेंगे। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, we will set the we'll set two separate variables. Suppose set beginning equal to lower bound, okay, that means हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है beginning equal to lower bound। लोअर बाउंड क्या है यहाँ पे 0 एंड अपर बाउंड क्या है यहाँ पे 5। तो ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है, ओके। डोंट वरी, दिस विल बी क्लियर टू यू ऑल, ओके। अब देखिए बिगिनिंग को हम लोग लोअर बाउंड में रख दिया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपर बाउंड को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में रख देंगे और एक वेरिएबल लेंगे हम लोग लास्ट इक्वल टू अपर बाउंड, फाइन। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग को एक लूप चाहिए। लूप में यहां पे लिख के दे रहा हूं लूप, ठीक है। until beginning is greater than the last, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में मिड पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है। हाउ, मिड इक्वल टू आई एंड टी इंटीजर बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे जो इंटीजर लिखा, इसका कारण ये है जो हम लोग का फ्रैक्शन पॉइंट वैल्यू आ रहा है, फ्रैक्शन जो पार्ट आ रहा है, इसको इंटीजर वैल्यू में लेके आएगा। जैसे कि हम लोगों के पास था 3.5, उसको डायरेक्ट 3 में लेके आएगा, कौन, ये इंटीजर, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट ढूंढ लिया। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम लोग चलेंगे कि इफ दिस मिड जो है ना, ये मिड किसको दे रहा है, इंडेक्स दे रहा है, ठीक है। बिगिनिंग एंड लास्ट कौन दे रहा है, लोअर बाउंड। लोअर मतलब क्या है 0 एंड 5। सो ये जो बिगिनिंग है, लास्ट है, सबको ये सब क्या दे रहा है, इंडेक्स को दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है। अल्टीमेटली वो इंडेक्स में जो वैल्यू है वो हम लोग मिल रहा है, ठीक है। तो इफ हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट मिल गया, सपोज मान लीजिए 0.5 यहाँ पे, तो यहाँ पे मिड पॉइंट क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, बिगिनिंग क्या है 0 प्लस 5/2, सो 2.5, अल्टीमेटली विल गेट 2, राइट। दैट मीन्स हम लोग का मिड यहाँ पे होगा। मान लीजिए हम लोग को आइटम सर्च करना है, आइटम सर्च करना है 3, दैट मीन्स वी आर सर्चिंग फॉर द फर्स्ट एलिमेंट 3। तो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट यहाँ पे है, पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि इफ, ये एरे का नाम क्या है, एरे। सो इफ ए डबल आर, ओके, कौन सा इंडेक्स में मिड है, हम लोग लिखेंगे इफ एरे मिड इज इक्वल टू आइटम। समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट आइटम फाउंड, उसके बाद हम लोग ब्रेक कर देंगे इसको। ब्रेक मतलब और देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बाहर से बाहर आ गया, हो गया। उसके बाद स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स निकला, सपोज जैसे कि इन दिस केस हम लोग सर्च करना है क्या 3 और मिड पॉइंट में क्या है 15। सो यहाँ पे देख सकते हैं एरे मिड, एरे मिड का वैल्यू क्या है, मिड का वैल्यू है 2। सो एरे 2 मतलब क्या है 15। सो यहाँ पे हम लोग देखा 15 इज इक्वल टू, तो आइटम क्या ढूंढ रहा है हम लोग 3। तो ये ट्रू है क्या, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो अगर फॉल्स है तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली ये आप एक अंदर के इस लूप के अंदर और एक ऐसे इफ स्टेट के अंदर जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। अगर ट्रू है तो डायरेक्टली आइटम फाउंड प्रिंट होगा, उसके बाद
और देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ब्रेक दे दिया और सर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो कंडीशन अगर फॉल्स हो रहा है तो हम लोग को और कंडीशन लगाना पड़ेगा, दूसरा कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, स्टेप 5 में हम लोग देखेंगे कि ये जो आइटम है, ये आइटम और जो आइटम हम लोग ढूंढ रहा है, ये आइटम मतलब क्या है, मिड पॉइंट में जो आइटम है, मिड पॉइंट वाला आइटम और जो हम लोग ढूंढ रहे हैं वो लेस देन है या स्मॉलर है, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ एरे मिड, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 15, मिड का वैल्यू क्या है, इंडेक्स 2, अंडर दिस इंडेक्स 2 वी हैव द वैल्यू 15। सो इफ एरे मिड इज लेस देन आइटम, ठीक है, अगर एरे मिड इज लेस देन, मतलब यहाँ पे 15, यहाँ पे बोल रहा अगर 15 इज लेस देन आइटम, आइटम क्या है यहाँ पे 3, अगर 15 3 से लेस देन होता तो क्या करता हम लोग, मैंने एग्जाम्पल में बताया था, हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये लोअर बाउंड को इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये फॉल्स निकला। ठीक है, तो इसके लिए ये ट्रू नहीं होगा, लेकिन अगर ये जब ये ट्रू होगा तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि बिग इक्वल टू मिड प्लस 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले मैंने लोअर बाउंड दिखाया था, अल्टीमेटली लोअर बाउंड हम लोग कहाँ पे रखा, एक वेरिएबल में रखा बिगिनिंग। तो क्या करेंगे, अगर ये ट्रू हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, बिगिनिंग को मिड प्लस 1, मतलब मिड क्या था 2, 2 प्लस 1 3, दैट मींस मिड यहाँ पे आ जाएगा, और सॉरी बिगिनिंग यहाँ पे आ जाएगा। ये जो बिगिनिंग है और यू कैन से लोअर बाउंड 3 में आ जाएगा, अगर ये ट्रू हुआ। लेकिन हम लोग का यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 6 में जाएंगे। स्टेप 6 में हम लोग क्या करेंगे, इफ इस बार हम लोग क्या करेंगे, इफ एरे मिड इज ग्रेटर देन आइटम, इफ एरे मिड मतलब हम कहां पे था, 2 में था। ठीक है, ओके, दैट मीन्स व्हाट, 15, दिस टाइम एरे मिड मीन्स व्हाट, इंडेक्स 2 में वैल्यू क्या है 15, राइट। सो 15 इज ग्रेटर देन 3, ऑब्वियसली दिस इज ट्रू, बिकॉज हम लोग का आइटम क्या है 3। ठीक है, तो 15 इज ग्रेटर देन 3। ओके, इन दिस केस व्हाट विल डू, वी विल, जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल में इसका पहला जो एग्जांपल दिया था वहां पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर ये ऐसा कंडीशन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, लोअर बाउंड को फिक्स रखेंगे और अपर बाउंड को, या फिर यहाँ पे हम लोग ने लिया लास्ट, तो लास्ट को हम लोग मिड यहाँ पे लेके आएंगे। वो कैसे करेंगे, इन दिस केस हम लोग लास्ट को लेके आएंगे, लास्ट इक्वल टू मिड -1। ओके, दैट मीन्स लोअर बाउंड यहाँ पे रहेगा, लेकिन अपर बाउंड कहाँ पे, मिड 2 पे है, अपर बाउंड यहाँ पे आ जाएगा और ये नहीं लिखेगा। ठीक है, तो स्टेप 6 में ये आ गया। अगर हम लोग ढूंढ रहे हैं सपोज 35, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, एरे मिड, दैट मीन्स बिगिनिंग हम लोग क्या करेंगे, बिगिनिंग को मिड प्लस 1 कर देंगे। तो हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं, आइटम ढूंढ रहे हैं 3, इन दिस केस लास्ट इक्वल टू मिड -1 कर देंगे। हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, एट लास्ट प्लीज राइट इट डाउन। ओके, मेरा यहाँ पे जगह थोड़ा कमी हो गया है, तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टेप 6 था। अब स्टेप 7 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ बिगिनिंग इज नॉट इक्वल टू लास्ट, अगर बिगिनिंग लास्ट, सपोज ये पूरा कंप्लीट हो गया है एंड बिगिनिंग एंड लास्ट एक साथ इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट अनसक्सेसफुल। ओके, मैं यहाँ पे प्रिंट और यू कैन राइट हियर आइटम नॉट फाउंड। ओके, उसके बाद एट लास्ट स्टेप 8 में हम लोग क्या करेंगे, एंड END। तो स्टेप 1 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 6, 7, 8। सो दिस इज द एल्गोरिथम टू फाइंड एन एरे
टू फाइंड एन आइटम ऑफ एन एरे। ओके, तो ये जो एल्गोरिथम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है ये। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। द मेन कॉन्सेप्ट इज, मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ, ये एल्गोरिथम में हम लोगों ने क्या किया है, log1 को एक वेरिएबल बिगिनिंग में रखा है। ठीक है, एंड अपर बाउंड जो है वो हम लोगों ने एक वेरिएबल में लिखा है, दैट इज लास्ट, बिगिनिंग एंड लास्ट। ये हम लोगों को समझने के लिए इजी होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लूप बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बार बार क्या होगा, इसका मिड पॉइंट ढूंढने का, अगर नहीं मिला फिर से मिड पॉइंट ढूंढने का, राइट और नॉट, दैट मीन्स ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने के लिए हम लोग को ऑब्वियसली वी नीड ए लूप। तो लूप अंटिल बिगिनिंग ग्रेटर देन लास्ट, तो बिगिनिंग जब तक लास्ट से बिगर होगा तब तक हम लोग ये यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मीट इक्वल टू इंटीजर, जो हम लोग का लूप के अंदर, क्योंकि हम लोग बार बार मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए ये मीट को हम लोग लूप के अंदर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग, ये एरे है हम लोग का, एरे का हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या किया, इसको मिड पॉइंट ढूंढना, कैसे, बिगिनिंग प्लस लास्ट। बिगिनिंग में क्या है, लोअर बाउंड, दैट मींस 0, अपर बाउंड में क्या है 5, तो 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद मिड पॉइंट मिल गया। अब देखो, सपोज कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि जो मिड पॉइंट मिला हम लोग को, और हम लोग सपोज ढूंढ रहा है 15, हम लोग सपोज ढूंढ रहा है 15, तो हम लोग को देखना पड़ेगा ना मिड पॉइंट में जो है क्या वही आइटम यू आर सर्चिंग फॉर, राइट। तो अगर ऐसा होता तो उसके लिए हम लोग को एक फंक्शन देना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, इफ एरे मिड इक्वल टू आइटम, अगर ट्रू है तो सपोज अगर 15 है यहाँ पे 15, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, अगर ये ट्रू हो गया तो यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ये सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये फॉल्स निकला तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा कि एरे मिड, जो मिड वाला पॉइंट है, ये आइटम से लेस देन है क्या। अगर लेस देन है तो हम लोग क्या करेंगे, लोअर बाउंड को लेके जाएंगे, कहां पे, मिड प्लस 1, दैट मीन्स ये मिड पॉइंट जो था इसका नेक्स्ट आइटम में जाएगा लोअर बाउंड, लेकिन अपर बाउंड फिक्स रहेगा। लेकिन अगर एरे मिड वाला जो मिड पॉइंट जो था हम लोग का, अगर वो आइटम, ये जो मिड वाला आइटम है और हम लोग जो ढूंढ रहे हैं उससे अगर ये वाला आइटम बिगर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार ये फिक्स रहेगा, अपर बाउंड को यहाँ पे लेके, कहां पे, मिड -1 में, मिड -1, दैट मीन्स मिड यहाँ पे था, ये वाला इसका पहला वाला आइटम। ठीक है, लेके आया, तो ऑब्वियसली हम लोग का जो आइटम है, इन दिस 3 कंडीशन यू विल गेट, अगर आइटम वहां पे है, अगर नहीं है तो ये यहाँ पे आ जाएगा कि आइटम नॉट फाउंड, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, एग्जाम में ये एल्गोरिथम आ सकता है, एग्जाम में प्रोग्रामिंग आ सकता है, और कभी कभी क्या हो सकता है, समटाइम्स दे माइट आस्क प्लीज राइट द स्टेप्स टू फाइंड द आइटम। मैं वो देके आज का क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, so question, suppose they might ask, write down the steps to find the element, suppose 15, okay, from the given array। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग के पास एरे दिया हुआ है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो यहाँ पे जो सपोज मान लीजिए ये हम लोग का इस बार सपोज डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। ओके, ओके, सो सपोज वी हैव 5 8 10 12 16 18 20 25 30। तो मान लीजिए हम लोग के पास एरे ये है। ठीक है, तो सपोज ये 16 है। ठीक है, तो
यहाँ से 15 ना, यहाँ पे आइटम नहीं है, तो मान लीजिए सपोज यहाँ पे बोला कि 25 को ढूंढना है, 25 को ढूंढना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, राइट डाउन द स्टेप्स टू फाइंड द एलिमेंट। दैट मींस ये हम लोग को एल्गोरिथम लिखने के लिए नहीं बोल रहा है, हम लोग को स्टेप्स ढूंढना है। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सेट बिगिनिंग इक्वल टू लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड क्या है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं बिगिनिंग इक्वल टू 0 एंड लास्ट इक्वल टू क्या है 8। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट ढूंढेंगे हम लोग, मिड इक्वल टू 0 प्लस 8/2, ये इंटीजर होगा यहाँ पे। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा 4 होगा ये। ठीक है, 4 मीन्स 16। ओके, तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग सर्च करेंगे कि इफ एरे का नाम, सपोज एरे का नाम है ARR, तो ARR इफ एरे मिड इज इक्वल टू आइटम। ठीक है, इफ एरे मिड इक्वल टू आइटम, अगर ये आइटम हो गया है, ठीक है, तो हम लोग का पास यहाँ पे देखा कि ये नहीं हो रहा है ना, एरे मिड में क्या है 4 मीन्स 16 है। इफ 16 इज इक्वल टू व्हाट, आइटम हम लोग क्या ढूंढ रहा है 25, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स निकला, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे मिड पॉइंट ढूंढेंगे, मिड। ठीक है, मिड इक्वल टू, इस बार क्या होगा, ये फॉल्स निकला ना, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग 16 इक्वल टू 15 पहले हम लोगों ने ये चेक किया, अगर ये है तो हो गया, अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो आइटम है इसको देखेंगे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इफ स्टेप 3 में हम लोग लिखेंगे, ये स्टेप 3 में हम लोग क्या लिखेंगे, एरे मिड। ठीक है, हम लोग देखो, हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख रहा है, राइट। अगर स्टेप लिख रहा है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ, ओके, एरे मिड कौन सा है, एरे मिड यहाँ पे हम लोग का 16 है, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इफ 16 इज लेस देन द आइटम 25, यस इट इज ट्रू, राइट। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, बिगिनिंग इक्वल टू क्या करेंगे, मिड प्लस 1, मिड वैल्यू क्या था, मिड वैल्यू था 4, तो हम लोग बिगिनिंग वैल्यू क्या होगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे बिगिनिंग वैल्यू क्या था 0, अब बिगिनिंग का वैल्यू क्या हो गया है 5। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट ढूंढेंगे, मिड इक्वल टू क्या होगा, इस बार बिगिनिंग क्या है 5, पहले था 0, इस बार क्या होगा 5, तो 5 प्लस लास्ट क्या है 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 13/2, अल्टीमेटली व्हाट 6, बिकॉज ये इंटीजर हम लोग को इंटीजर ढूंढेगा तो 6 देगा, राइट। तो ये हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 पे लिखेंगे, हम लोग कैसे लिखेंगे, फिर से हम लोग दिख रहा है, तो 6, ये जो 6 मिल रहा है मिड में, ये क्या है इंडेक्स है। दैट मीन्स पहले हम लोग का पास हम लोग मिड कहाँ पे था, यहाँ पे था, अब मिड कहाँ पे है, मिड यहाँ पे है। ठीक है, अब मिड वहां पे है। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इफ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एरे मिड दैट मीन्स 20, इफ एरे इज 20 इज लेस देन 25, यस दिस इज ट्रू। अगर ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से बिगिनिंग को लेके जाएंगे वहां पे, राइट, जैसे कि यहाँ पे लेके गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, बिगिनिंग इक्वल टू पहले के, अभी बिगिनिंग क्या है 5 है, तो 5 प्लस 1 दैट इज 6, अब बिगिनिंग यहाँ पे आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, हाँ यहाँ से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो इस बार हम लोग क्या करना पड़ेगा, मिड। तो मिड इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, मिड इक्वल टू क्या होगा, बिगिनिंग क्या है 6 प्लस
अपर बाउंड क्या है 8 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 14 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना होगा 7, राइट। तो मिड का वैल्यू क्या है, मिड का वैल्यू पहले था 6, अब मिड का वैल्यू कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा मिड, ठीक है, मिड यहां पे है, फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 5 में हम लोग देखेंगे कि ये जो आइटम मिड में है 7, इफ एरे मिड इक्वल टू हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 25 इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स जो मिड पॉइंट में है वही है, राइट। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इफ 25 इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स मिड पॉइंट में जो है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकता है आइटम फाउंड, ओके, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड, ओके। सो हम लोग जो एल्गोरिथम सीखा है उसी को हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे राइट डाउन द स्टेप्स, तो खाली हम लोग को स्टेप्स लिखना है, इस बार हम लोग को एल्गोरिथम नहीं लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, स्टेप 2 में क्या किया है, स्टेप 2 में एरे मिड इक्वल टू आइटम, मैंने ये किया है, राइट। तो ये जो ओके ये जो है स्टेप 2 हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, ये मिड वाला जो है यहाँ पे लगाएंगे स्टेप 2, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया, खाली सेट किया है बिगिनिंग इक्वल टू 0 एंड लास्ट इक्वल टू 8। इस बार हम लोग एल्गोरिथम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यू देके लिख रहा है, प्रूव करना है ना। तो इसके लिए बिगिनिंग इक्वल टू डायरेक्ट इंडेक्स लिख दिया है, लास्ट इक्वल टू 8 लिख दिया है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि मिड इक्वल टू इंटीजर 0 प्लस 8 डिवाइड बाय, ये क्या हम लोगों ने मिड पॉइंट ढूंढ लिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एरे मिड, हम लोग अगर डायरेक्टली ये नहीं लिख के डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग स्टेप लिख रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मिड 4 में क्या है 16, इफ 16 इज इक्वल टू 25, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर ये नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे इफ नेक्स्ट कंडीशन जो है 16 इज लेस देन 25, यस, इस बार ट्रू हुआ, तो बिगिनिंग इक्वल टू 4 प्लस 1 लिखा 5, मिड पॉइंट ढूंढा 6, उसके बाद फिर से आप लोगों ने ये चेक किया, ठीक है, दिस इज हाउ वी टू चेक, ओके। एंड okay, so this is how we can ultimately we got the item, right? When we got the item, जब हम लोगों का मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट एंड जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो दोनों एक साथ मिला हम लोगों को, ठीक है। एंड स्टेप 5 में हम लोगों ने इसको आइटम मिल गया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द स्टेप्स टू फाइंड एन एलिमेंट ऑफ द एरे, ओके। तो आज का क्लास में हम लोगों ने देखा कि बाइनरी सर्चिंग टेक्निक जो है वो हम लोग का टेक्निक कैसे हम लोग करना है। इसका आइडिया जो मेन आइडिया है, ये हम लोग पहले मिड पॉइंट ढूंढना है, फिर अगर मिड पॉइंट ढूंढने के बाद जो आइटम हम लोग सर्च कर रहे हैं वो मिड पॉइंट से बिगर है तो हम लोग लोअर बाउंड को लेके आएंगे, अगर स्मॉलर है तो अपर बाउंड को लेके आएंगे। यही बस कॉन्सेप्ट है, मतलब हम लोग को एरे को क्या करेंगे, डिवाइड करके स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आई होप द एल्गोरिथम इज क्लियर, and especially in examination this kind of steps also used to ask, okay, so please go through this, okay. If you have any queries regarding this binary search you can call me, okay. And the programming I'll leave up to you because algorithm जिसको समझ में आ गया उसके लिए programming लिखना easy है, ठीक है। With this today I'll stop my classes. Next class we'll move to the what you can say different sorting algorithm. Thank you, have a good day.